لندن میں نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں تیز، عام انتخابات کی تیاریوں اور نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت جاری۔ پاکستان میں موجود نون لیگ کی مرکزی قیادت پھر لندن چلی گئی۔ مریم نواز کی لندن روانگی کے چند گھنٹے بعد شہباز شریف بھی برطانیہ چلے گئے۔ شہباز شریف ایک ماہ لندن میں قیام کے بعد 2 روز قبل ہی وطن واپس پہنچے تھے۔ روانگی سے پہلے مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات بھی ہوئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کسی کا پیغام لے کر لندن نہیں گئے، شہباز شریف کو خود نواز شریف نے طلب کیا ہے۔ لندن میں نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں تیز، عام انتخابات کی تیاریوں اور نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت۔ پاکستان میں موجود نون لیگ کی مرکزی قیادت پھر لندن چلی گئی۔ مریم نواز کی لندن روانگی سے چند گھنٹے بعد شہباز شریف بھی برطانیہ چلے گئے۔ اہم خبر آپ کو دیں، لندن میں نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں تیز، عام انتخابات کی تیاریوں اور نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت جاری۔ پاکستان میں موجود نون لیگ کی مرکزی قیادت پھر سے لندن چلی گئی۔ مریم نواز کی لندن روانگی کے چند گھنٹے بعد شہباز شریف بھی برطانیہ چلے گئے ہیں۔ شہباز شریف ایک ماہ لندن میں قیام کے بعد 2 روز قبل ہی وطن واپس پہنچے تھے۔ روانگی سے پہلے مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات بھی ہوئی۔ نیب کے کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا۔ اس وقت احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ کے پی میں بھی احتساب عدالتوں میں 160 کے قریب ریفرنس واپس ہو گئے۔ نیب کے پی نے احتساب عدالتوں کے رجسٹرار کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ نیب کے کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت، اسلام آباد کے احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا ہے۔ اس وقت احتساب عدالت میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ نیب کے کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت، اسلام آباد کے احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا۔ اس وقت احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی احتساب عدالتوں میں 160 کے قریب ریفرنس واپس ہو گئے۔ عالمی دہشت گرد بھارت کو دنیا نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ سکھ رہنما کے قتل پر امریکہ کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے انٹرویو میں کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے الزامات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ان تمام اقدامات کی حمایت کرے گا جس سے واقعے کی سچائی تک پہنچا جا سکے۔ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کونسل کے ترجمان اینڈریو واٹسن نے کہا کہ مجرموں کو انصاف کے کچہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرتا ہے تو مملکت کو بھی اسے رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو پہلا انٹرویو۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب کو کسی بھی ملک کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ دنیا ایک نئے ہیروشیما کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم ہر روز اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے قریب آتے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ فلسطین بہت اہم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اب تک ہمارے اچھے مذاکرات کے ادوار گزرے ہیں۔ ہمیں امید ہے ایک دن فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا اور فلسطینیوں کی زندگیاں آسان ہوں گی۔ When there is approach from President Biden administration to get to that point, for us the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiations continue till now. We're gonna see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life of the Palestinians. Every day we get closer. If they get one, we have to get one. راولپنڈی میں شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ متروکہ وقف املاک کے عملے کا پولیس اور ایف آئی اے کی بڑی نفری کے ساتھ آپریشن، عملے نے تالے پر تالے لگا دیے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی سیاسی بیٹھک کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک کا کہنا ہے کہ یہ جائیداد ہماری ملکیت ہے۔ شیخ رشید ملکیت کا ثبوت پیش نہ کر سکے، لہٰذا پراپرٹی بحق سرکار ضبط کر لی۔
आगे बढ़े आपको बताएं, लाल हवेली सील करने का इकदाम हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। जस्टिस जवाद हसन तौहीन अदालत केस में कल समाअत करेंगे। तौहीन अदालत दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाल हवेली की बाकायदा मलकियती रजिस्ट्री है, जिसे डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ ने भी तस्लीम किया। मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। लाल हवेली सील करके तौहीन अदालत की गई। लाल हवेली सील करने का इक़दाम हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। जस्टिस जवाद हसन तौहीन अदालत केस में कल समाअत करेंगे। तौहीन अदालत दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाल हवेली की बाकायदा मलकियती रजिस्ट्री है, जिसे डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ ने भी तस्लीम किया। ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। लाल हवेली सील करके तौहीन अदालत की गई। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से इजलास लीडर्स डायलॉग में इजहार ख्याल। उनकी जानिब से कहा गया कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध के हवाले से मंसूबे का आगाज़ किया है। अर्ली वार्निंग निज़ाम से मुताल्लिक भी मंसूबा बंदी की है। 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। Sector investment flows. Mr. President, we must implement all commitments undertaken at the SDG summit, in particular the SDG stimulus, rechanneling of SDRs, enlarged lending by the multilateral development banks, and resolving the debt issues. Yet, given the large financing gap, developing countries will also need to mobilize private investment to achieve the SDGs. Unfortunately, most private sector investment flows to the advanced economies, some to mature energy markets, and virtually none in the rest of developing countries. अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला आज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया है। 292 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 296 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान, 29 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स घटकर 45,859 पॉइंट की सतह पर आ गया है। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला आज भी जारी है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। अपडेट कीजिएगा एहतशाम। हाँ जी, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ मरकजी बैंक की कार्रवाइयों के साथ ज़र-मुबादला के लेन देन को शफाफ बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग और बी कैटेगरी एक्सचेंज कंपनियों को मुकम्मल ए कैटेगरी एक्सचेंज कंपनियों में तब्दील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देने जैसे अवामिल के बायस आज 12वें दिन भी डॉलर रिवर्स गियर में है, जिससे डॉलर के इंटर बैंक रेट 293 रुपए से भी नीचे आ गए हैं, जबकि ओपन रेट 296 रुपए पर आ गया है। फिल वक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपया 13 पैसे की कमी से 292 रुपया 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी से 296 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इंसदाद स्मगलिंग की जो मुतल्लिका इदारों की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उससे डॉलर की कदर में तवादर के साथ कमी वाक़ हो रही है। ज़राए का कहना है कि क्रैकडाउन से कबल मुख्तलिफ गैर कानूनी चैनल से तकरीबन 50 करोड़ डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, जो अब रुक गई है, क्योंकि मुतल्लिका इदारों की जानिब से खुफिया गोदामों, मार्केटों और घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग के मुनज़्ज़म गुरोहों की कमर टूट गई है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। प्रॉपर्टी के केस में अदालत का वक्त जाया करने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वकील को 5,000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा कराकर रसीद पेश करें। प्रॉपर्टी के केस में अदालत का वक्त जाया करने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वकील को 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा कराकर रसीद पेश करें। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से कि अदालत का वक्त जाया करने पर वकील को जुर्माना कर दिया गया है। अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप 2024 की मुंतकली का खतरा टल गया। पहली बार ICC ने 3 वेन्यूज फाइनल कर लिए।
पाक भारत मुकाबला न्यूयॉर्क में हो सकता है। 2021 में T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका को मुश्तरका तौर पर दी गई थी। आईसीसी ने न्यूयॉर्क, डलास और मियामी का इंतखाब कर लिया है, जबकि न्यूयॉर्क शहर से 30 मील दूर आइजनहावर पार्क में 34,000 नशिस्तों वाला क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। डेलस और फ्लोरिडा में पहले से ही सहूलतें मौजूद हैं। अलबत्ता इन दोनों मकामात पर स्टेडियम की गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा। अगले साल शेड्यूल वर्ल्ड कप पहले से मुख्तलिफ होगा। इसमें 20 टीमों को पहले राउंड के लिए 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। फिर हर ग्रुप से टॉप टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। एशियन गेम्स चीन के शहर हंगजू में शुरू होने वाली है। हमारा नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद यूसुफ इस वक्त एथलेटिक विलेज में मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करेंगे। यूसुफ, बताइएगा कि एशियन गेम्स की तैयारियां कैसी हैं और पाकिस्तानी एथलीट्स का मोराल कैसा है? जिस वक्त मैं एशियन गेम के एथलीट्स विलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर 45 ममालिक के जो एथलीट्स यहाँ पर क्याम कर रहे हैं और पाकिस्तान का दस्ता भी यहीं पे रुका हुआ है। पाकिस्तान से टीमों की आमद का सिलसिला जारी है और ये 23 तारीख को यहाँ पर इफ्तारी गेम्स की इसकी इफ्ताह होने जा रहा है। उसके हवाले से इससे पहले जितने भी इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर ये कि आज पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम पहली बार इंडोनेशिया के खिलाफ अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। इतना आसान है थोड़ा सा ये मैच दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक तजर्बाकार टीम है और पाकिस्तान के सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी पहुंचने के काफ़ी रोशन इम्कान हैं। पाकिस्तान का दूसरे मुकाबलों में रोइंग और सेलिंग के इवेंट भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान से आने वाले जितने भी यहाँ पर खिलाड़ियों का ये कहना है कि वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मेडल जीत कर लाएंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।